Okay, Rina, let's proceed ahead with your HR for Oil India Limited. So we start with your brief introduction. Thank you, sir, for giving me the opportunity to introduce myself. I'm Reena Saini. I'm from Panipat, Haryana. Sir, I did my schooling from DPS Panipat Refinery. Thereafter, I did my BTech from NIT Kurukshetra in Electrical Engineering in 2021. And sir, my BTech project was wind energy forecasting using machine learning. And in 2020, I underwent industrial training at Panipat Thermal Power Station. And sir, my hobbies are playing Sudoku and painting, and recently taken up reading books. And sir, my aim is to contribute towards the society positively and to be a responsible citizen. Okay, so Rina, you have done your industrial training from Panipat Refinery of Oil India Sir, Panipat Thermal Power Station. thermal power stations. Okay, and Panipat Refinery, you have done your schooling from there. Yes, sir, DPS Panipat Refinery. Have you ever visited that refinery also of No, sir. IUCL? No. No, sir. Hmm. Okay, so can you tell us something about the industrial training? What did you learn there? Sir, my industrial training was actually intended to be a 6 months, but it was shortened to 2 months due to COVID. So it was Hmm. mostly observational based training. So we were made familiarized with the functioning of the thermal power plant from the coal combustion to the electricity generation. And we also visited the switchyard to see the various electrical appliances. So it was physical training or online mode? Sir, initially it was physical training only. We used to visit once every week. Hmm. Okay, so the project which you have done, Reena, that looks like related to wind power, right? Yes, sir. Okay, so what is the application of that project? Sir, that project can be used to forecast and predict how much wind energy we can produce. So basically, actually, wind energy is not always present. Okay. So it will help us better to integrate it with other renewable sources for grid Hmm. stability. So you have done some practical experiment also in that, or it was all theoretical analysis? Sir, it was basically we did it using machine learning using Python. So it was on the computer, not practically. So from where you have taken parameters and inputs for analysis? Sir, we source the data from the National NREL website about the wind energy, Hmm. power, velocity, temperature, and Hmm. pressure. Any idea about the wind power potential in India? Sir, sir, right now I can't Or recall. if you're aware about some companies which are dealing with wind power harnessing? No, sir. अच्छा, आपको ऑयल इंडिया का कुछ आइडिया है, रीना, वेदर वी पीपल आर इनटू रिन्यूएबल एनर्जी आल्सो और नॉट? Yes, sir. Oil India has also invested in renewable energy. Oil India has actually 188 megawatt of renewable energy projects, in which ओके. 14 megawatts is solar and the rest is wind energy. And wind energy projects are basically in Jaisalmer, MP, and Gujarat. Any particular reason why wind power projects are located in these areas, like you mentioned, Jaisalmer, Madhya Pradesh, Gujarat, or maybe Tamil Nadu? Any particular reason for that, Reena? Sir, actually, wind energy project, wind power usually relies on the velocity of wind. That is very important Yes. parameter. So in Mm-hmm. these regions, the wind velocity is around 15 or 12 meter per second, which is needed to produce wind power. Below that, it will be difficult to produce wind power. Suppose we want throughout the day, wind flow. So where we should choose the site for wind power plant in Uh, India? Sir, in Rajasthan, Gujarat, and in coastal regions of South India. देखो, राजस्थान जो है वो तो पूरा का पूरा वो आप देख रहे हो, डेजर्ट टाइप का जैसलमेर एरिया है। Hmm. और कोस्टल एरिया जो है वो कोस्टल होता है, बिल्कुल अपोजिट है क्लाइमेट्स। तो ऐसा क्या रीजन है व्हाई कोस्टल में यू गेट विंड एंड व्हाई डेजर्ट एरिया में यू गेट विंड? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सर एक्चुअली जो डेजर्ट एरिया जो होता है वो ऑन शोर में आता है, और जो कोस्टल वगैरह होता है वो ऑफ शोर में आता है। तो ऑफ शोर में जो विंड की वेलोसिटी होती है ना वो ज्यादा रहती है।
तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे भी जो है वो विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो रखते हैं। Hmm. Okay, now as electrical engineer, what career opportunities you are looking for yourself in Oil India? Sir, I think my job role and responsibility as electrical engineer in Oil India will be about the maintenance, inspection of electrical systems and about the planning, installation and upgradation whenever projects will come, and Hmm. about the documentation and reporting of the electrical assets and maintenance activities of the plant. Hmm. Are you aware about the kind of job locations you may get once you join us? Sir, Oil India is mostly present in northeast region. So Hmm. there are actually various pipeline networks and oil rigs. तो आपको हरियाणा से नॉर्थ ईस्ट जाना इज ओके फॉर यू? यू आर Yes, कंफर्टेबल sir. विद दैट? Yes, sir. I'm comfortable to relocation and traveling for work. हम्म। ओके, आपने ना हमारा वेबसाइट देखा है ऑयल इंडिया का? Yes, sir. Can you tell us what are the different business verticals which our company is into? Sir, actually, Oil India is a fully integrated upstream industry, and also it has one downstream unit of LPG refilling plant in Assam, whose marketing is done by IOCL. So Hmm. OSL, Oil India sells its crude oil and natural gas to various refineries, fertilizers, and power companies like Assam State Electricity Board and Rajasthan Electricity Board and Brahmaswarovar Valley Fertilizer Company and IOCL Assam Division, and also to Northeastern Power Corporation. And also it is involved in city gas distribution for LPG plants. Do we have our petrol pumps also, Rina? No, sir, Oil India, sir, I have not seen Oil India's petrol pump. Not even in Northeast? Uh, Sir, I don't think so because it is a upstream industry. So the only downstream activity is LPG refilling plant. So I don't think Oil हम्म। India's petrol pump. ओके। सो आप सीएमडी के बारे में जानती हैं ऑयल इंडिया के? Yes, sir. आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एनी फीमेल मेंबर यू आर Uh, अवेयर? um, Sir, I know, but I can't recall her name. Probably in Director of Finance. हम्म। अच्छा, आप ये बताएं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? व्हाई यू वांट टू ज्वाइन एनर्जी सेक्टर और ऑयल सेक्टर? You may be having other options also, like working in your own home state as assistant engineer in maybe electricity department or something. So why you at the first place are interested to work in energy company? Sir, I'm interested to work in energy company, sir, because by 2050 and इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो 2.7% तक बढ़ जाएगी सर। और एज एन इंजीनियर आई फील इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई पैशन टू contribute to the energy security and national development of our country. Also, sir, joining oil sector is my passion because of the influence and guidance of my father. I've seen his passion for his work and he has shared with me the opportunities in the oil sector. He Sir, is also also, working in oil sector. yes, sir. In public sector. Yes, sir. Okay. So Sir, so there is oil, companies. There is a oil refinery in Panipat जो आपके बहुत नजदीक है ना? yes, So sir. don't you want to join IOCL and want to work in Panipat refinery someday? Sir, actually, IOCL, at present, I do not have offer from IOCL. And also, sir, IOCL, I believe, it is a very reputable company, but it is leading right now in the downstream industry. And being with Oil India will allow me the opportunity to be part of its growth and learn every day to be part of the success of Oil India. अच्छा, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करती हैं और हमारे साथ स्टे करती हैं ऑयल इंडिया में, तो कहाँ देखती हैं अपने आप को आप आफ्टर 20-30 years? Sir, after 20, 30 years, I believe that I will envision myself as a knowledgeable and reliable leader who can make lasting changes in the industry and can contribute to the society by some major initiative and projects. बट जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फ्यूल हैं वो उसका अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, डू यू थिंक देर इज अ लॉन्ग फ्यूचर फॉर ऑयल बेस्ड कंपनीज?
सर एक्चुअली अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि जो इंडिया है उसका एनर्जी नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट है 2070 तक। तो सर आई हम्म बिलीव 2070 तक तो ऑयल जो है वो क्रूशियल रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए। बट हम्म ऑयल ऑयल इंडिया भी ये बात रिकॉग्नाइज करती है रियलिटी को, तो उन्होंने भी जो है रेन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, लाइक विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, हम्म राजस्थान एमपी एंड Gujarat. Also, sir, Oil India is also has its green hydrogen plant in जो in Assam, जोरात आसाम। सर हम्म अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो है बेंगलोर में इंडिया एनर्जी वीक भी हुआ था, जिसमें हम्म ऑयल इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस भी जो है वो प्रेजेंट की गई थी। तो हम्म सर 2050 तक तो मतलब रहेगा ऑयल सेक्टर क्रूशल, एंड तब तक साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है रेन्यूएबल सेक्टर में। हम्म। अच्छा, आपके जो प्रोजेक्ट है विच इज ऑन विंड पावर दिस थिंग, सो उसका क्या बेनिफिट होगा वंस यू ज्वाइन दिस जॉब इन ऑयल इंडिया? सर विंड प्रोजेक्ट्स तो अभी चल रहे हैं ऑयल इंडिया के, सो आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट बाय हेल्पिंग इन विंड एनर्जी फोरकास्टिंग एंड डेटा सोर्सिंग एंड डेटा क्लीनिंग। एंड ऑल्सो सर आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो आई कैन ऑल्सो help in the installation of the wind energy of electrical system and grid integration. ओके ओके रीना, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। व्हेन इज योर एक्चुअल इंटरव्यू? सर 25 जून। 25th को है आपका, तो अभी टाइम है। आप और एचआर लगाइए और टेक्निकल स्नैप्स भी दीजिए। देखो, जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, उसमें आपको ईयर बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 2021 में आप पास आउट हुई। सो ईयर, परसेंटेज, मार्क्स, ऐसा कुछ चीज नहीं बताना होता उसमें। ठीक है सर। बाकी आपने दो तीन पॉइंट्स उसमें बोले हैं इंट्रोडक्शन में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको तैयार करने पड़ेंगे। एक तो आपने पानीपत रिफाइनरी का नाम लिया है, जब आपने एजुकेशन लिया है अपना तो वो सुनेंगे उसको, पानीपत रिफाइनरी को, आईयूसीएल का है वहां पे। और यस साथ सर। में आपने अपना प्रोजेक्ट पे खत्म किया इंट्रोडक्शन, जो अच्छी बात है। बट ओनली थिंग इज लाइक यू शुड बी रियली गुड इन योर प्रोजेक्ट। जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डेट मशीन लर्निंग के ऊपर है शायद, वो जो आपने किया है। यस और सर। लेकिन विंड पावर के ऊपर है, तो विंड पावर में ऑयल इंडिया भी है। अब आपको ये इंटरनेट पे जाके थोड़ा तैयार जरूर करना पड़ेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन पार्ट पूछेंगे। और जब यस। विंड पावर की आपने बात कर दी, रिन्यूएबल की, तो वो इंडियन कंटेक्स्ट में जरूर जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है पूरे पावर में, उसमें विंड एनर्जी का कितना है, और कहाँ विंड पावर प्लांट लगे हुए हैं। और कौन सी, जैसे सुजलॉन एनर्जी का नाम सुना होगा आपने, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है विंड पावर में, उनका नाम यस। याद कर लो। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि कुछ कंपनीज के नाम बताओ जो विंड पावर में डील करती हैं, यस तो सर। आपने उसका आंसर नहीं दिया, लेकिन बाद में खुद ही आपने बोला कि साहब ये जो ऑयल इंडिया है ये भी विंड पावर में है। राइट, तो आप खुद बोल सकते थे वहां पे कि ऑयल इंडिया भी सर विंड पावर में है, आई सीन दैट इट इज आल्सो वर्किंग इन विंड पावर। तो आपने विंड पावर का प्रोजेक्ट किया, तो विंड पावर के बारे में सारा नॉलेज एक्वायर करो। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि तमिलनाडु में क्यों लगते हैं, जैसलमेर में क्यों लगते हैं, तो इसका आंसर आप बहुत अच्छा नहीं दे पाई। इसको ढूंढो आंसर को, कि जो कोस्टल एरिया उसमें तो ठीक है साहब, की जो विंड फ्लो है वो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इन लैंड मास एंड सी, वो थ्रू आउट द डे एंड ईयर वो फ्लो होता रहता है। वो आपके पास वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है, जैसे आपने बोला कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है विंड फ्लो की, लेकिन कोस्टल में है। इसीलिए तमिलनाडु वगैरह में बहुत ज्यादा विंड पावर प्लांट लगे हुए हैं। तो जैसलमेर में क्यों है, राजस्थान, अगर हमें हरियाणा में लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे, कुछ इसके पॉइंट्स जैसे विंड फ्लो कितना चाहिए, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा एक्वायर कर लो रही ना, नॉलेज विंड पावर के बारे में पूरा नॉलेज एक्वायर कर लो। आईयूसीएल क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं, उसका आंसर आपने एक तो ठीक दिया कि साहब मेरे पास इसका कोई अभी वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। दूसरा मेरे को ठीक नहीं लगा कि जिसमें आपने बोला सर ये तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम है, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। जैसे जब आपने ज्वाइन करना है ना, आप खुद सोच के देखो कि आप ऑयल इंडिया में क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते, इसका ऑनेस्ट आंसर सोचो आप। इसका ऑनेस्ट आंसर यही है कि सर इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई मे गेट इट, बट पॉइंट इज राइट नाउ आई डोंट हैव ऑप्शन फॉर दैट। एक तो ऑनेस्ट आंसर ये है। दूसरा कि सर इवन ऑयल आईयूसीएल इफ आई ज्वाइन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल बी वर्किंग इन पानीपत इज नॉट वेरी हाई। वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो पानीपत के भी हैं, वो ऑयल इंडिया में, इंडियन ऑयल में, वो पानीपत में जॉब नहीं करते हैं, इधर उधर उनको पोस्ट किया जाता है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में भी पोस्ट किया जाता है। तो व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनर्जी कंपनी, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एंटायर इंडिया। बाकी आप कहीं रीलोकेट हो जाएंगी स्टेट में, क्यों नहीं करना चाहती हैं, तो बोलना कि जो कल्चर है ना पब्लिक सेक्टर का, सर पब्लिक कल्चर का जो वर्क कल्चर है, दैट इज दी बेस्ट, इज द बेस्ट एम्प्लॉयर।
स्टेट में कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस वगैरह होते हैं, वर्क कल्चर उतना अच्छा नहीं होता जितना पब्लिक सेक्टर में होता है। तो पब्लिक सेक्टर का वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, दे आर द वर्ल्ड इन देमसेल्व्स। जैसे आप कहीं जाती हैं किसी, जैसे आपने पानीपत रिफाइनरी देखा हुआ है, आप वहां गई हैं, आपको आपके फादर साहब से इस चीज का नॉलेज है कि जो वर्क सब बहुत कल्चर है किसी डाइवर्स भी। होता है। हाँ सॉरी। सब बहुत डाइवर्स कल्चर रहता है। हाँ मतलब अलग अलग जगह के लोग हैं, सारे कंट्री से लोग आते हैं वहां पे, और वो एक कैंटोनमेंट की तरह से होता है, एक कम्युनिटी होती है, और उसके अंदर वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है। तो इन चीजों की वजह से आप पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये आंसर निकलने चाहिए रीना, क्योंकि बीइंग गर्ल वो जरूर पूछेगा कि साहब आप हरियाणा से दूर कैसे जाएंगी, आप इधर उधर कहाँ जॉब, वो देखता है इस चीज को कि क्या फैमिली वाइज यू आर ओके फॉर लोकेटिंग। तो आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके फादर इस डोमेन में है, तो उनसे आपने ये चीजें सीखी हैं। आपने हम्म। खुद रिफाइनरी विजिट की है, तो आपने वहां पे अंदर इकोसिस्टम देखा है। वो सारी चीजें निकाल के आपके आनी चाहिए आंसर में। ठीक है रीना, इन चीजों पे वर्कआउट कर लो, और दूसरे एचआर में इन पे इम्प्रूव करना है आपको। सर एक तो ये पानीपत रिफाइनरी के बारे में, एक विंड के बारे में, और एक क्यों वाईएफबी। ज्वाइन करना है ऑयल इंडिया, जी। क्यों ज्वाइन करना है, राइट, और स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं ज्वाइन करनी है, तो वाई यू वांट टू ज्वाइन इट, ये दूसरी जगह शिफ्ट कर दें तो। सर फिर एक्चुअली अगर मैं जैसे ये बोलूंगी कि मैं ओपन नो टू ऑल, मैं तो सारी इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए आई एम प्रिपेयरिंग, तो फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा ना कि OISL क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। नहीं नहीं, उसका यही है कि सर आईओसीएल इज आल्सो वंडरफुल कंपनी, बट आई डोंट हैव ऑप्शन एज ऑफ नाउ। भाई ऑनेस्ट आंसर है ना, ये ऑप्शन होने भी तो यस। चाहिए तुम्हारे पास। हाँ। अच्छा फ्यूचर में अगर ऑप्शन हुई तो आप बोलेंगे कि सर वंस आई गेट इनटू ऑयल इंडिया, इट इज वेरी रेप्यूटेड एज एनी अदर कंपनी, ऑयल इंडिया। तो वंस आई गेट अ जॉब, तो मैं एग्जाम में थोड़ी लिखती रहूंगी। आप सोचो कि आपको कोई जॉब मिल गई, तो आप उसके इक्वल जॉब के लिए ट्राई क्यों करेंगे, दोबारा एग्जाम लिखेंगे, गेट लिखेंगे, ऐसा क्यों करेंगे आप। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यू नीड टू मेक देम रियलाइज, फर्स्ट यू रियलाइज योर सेल्फ कि आपके लिए आईओसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया सब बराबर है, पहले आप रियलाइज करो। फिर अब ये चीज वहां रिफ्लेक्ट करो कि सर दे आर सेम, इफ आई गेट ऑयल इंडिया व्हाई शुड आई राइट आईओसीएल। जब तुम ये बात कॉन्फिडेंस से बोलोगी ना, तो वो कन्विंस हो जाएगा। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि नहीं ऑयल इंडिया आईओसीएल इज बेटर। नो सर, आई बेग टू डिफर, आई थिंक दे आर वेरी रेप्यूटेड कंपनीज एंड इक्वली गुड फॉर मी। तो ऐसे आप बोलेंगे। फिर क्यों नहीं ज्वाइन करनी है सर, ऑप्शन मेरे पास अभी ऑयल इंडिया का है, तो मैं इसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बस ये आपको कन्विंस होके आंसर करना है इसका। ठीक है सर। ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन अगली बार पहले आप कन्विंस खुद को हो, तब आप उनको कर पाएंगे ना। आप खुद कन्विंस नहीं है तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है।